हाँ जी, नवाल किधर है भाई? सर नवाल अभी ऑफलाइन हो गई है, इंटरनेट उसका नहीं चल रहा। अच्छा, ये मैं वीडियो ज़रा चला दूं दिखाने के लिए। यस सर। इसको ज़रा थोड़ा सा एंजॉय करना पड़ेगा। अभी अभी ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं है नादिर। जी सर। अभी ऐनक ना लगाओ। अभी नहीं लगा रहा सर। लो जी, अब तुम सुन लो ये ठीक है, एक मैंने छोटा। एनएक्स लगाने की कोशिश की थी, नहीं चला। नहीं, कुछ नहीं अभी हुआ। चलेगा, अभी नहीं चलेगा। सुनो, मैथमेटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर, there are so many areas. Mathematics के अंदर जी, नीचे वाले पे करता हूँ। there are so many areas where we talk about 3D, uh, three-dimensional motion या three-dimensional characters या three-dimensional objects. आपको आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। अच्छा ठीक है। Yes sir. Well, ओहो, we live in 3D भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? So, motion या three-dimensional characters या three-dimensional objects. Well, ओहो, we live in 3D भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? So, if you don't have a 3D experience in life, you are not experiencing life. Life is 3D. That's why we have two eyes. And unfortunately, our books, our computers give you a 2D illusion of a 3D world. So how about if we learn a 3D world? How about if we learn the properties of a 3D object? How about if we learn the 3D motion of an object? 3D motion of an object means motion of an object in 3 dimensions, in really 3 dimensions. Would not that be wonderful? Would not that be so inspiring and immersive? In my workshops, when the first time our younger participants looked at the 3D virtual reality, oh, they were, oh, ये क्या हो गया है? ये तो मेरी नाक पे आके बैठ गया है. So let me give you a small glimpse of what we can do with 3D reality, with 3D virtual reality. ये आपके सामने एक you have this picture. इसमें जो red axis है is sort of x-axis. The green axis is y-axis, and the blue axis is the z-axis, the height. ये जो 2D में रहते हैं वो x और y में ही ऑपरेट करते हैं. यहाँ पर you can assume एक कार यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से चलना शुरू हुई है. I can show that a car is moving from, ये ग्राउंड से चलना शुरू हुई है, इस ग्राउंड से, और ये ऊपर तो जा नहीं सकती, जाहिर है कार उड़ तो नहीं सकती. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार, दिस वन बताओ. इसको मैं शुरू में ले जाता हूँ पहले. हाँ, ये देखें, ये कार बढ़ती जा रही है आगे. इट्स मूविंग इन ए ग्रीन ground, grassy plot, moving and turning in a grassy plot, and then going, it's coming towards me and then going towards right. और ये XY plane में ही move कर रही है. So this is the XY plane movement. This is known as the two-dimensional movement in mathematics or in kinematics. Two-dimensional motion.
इसकी एक मोशन तो है इस डायरेक्शन में, एक मोशन है इस डायरेक्शन में x and y. So it's a two-dimensional motion. इसको हम एनी क्वेश्चंस? अभी हमने 3D शुरू नहीं किया है, कोई सवाल है तो बता दें। नो सर। हम एक प्लेन ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं विदाउट अ 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट, मगर the other two are not only moving in xy plane, not only on the ground, but are also taking, मतलब they are taking off. Suppose कि हम किसी गेंद को फेंक रहे हैं, look at the red, look at this one, yes, the red one, और इसको हम फेंकते हैं, ये एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जाती है, and this stays in, you see, अब अगर आप इसको घुमा के देखें तो this stays in this red plane, which is the YZ plane. ये देखें, ये YZ plane है, और ये एक और गेंद है। अब मैं कार की मिसाल तो इसलिए नहीं ले रहा कि कार तो हवा में नहीं उड़ सकती, अगर कार हवा में उड़ सके तो। यार रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस सर। ओके, कार की मिसाल भी ले लेंगे। दी वायलेट वन, जामनी वाली जो है, ये भी इसी तरह से, ये देखें, ये जमीन से उठ के जाती है, कोई इसको प्रोजेक्टाइल बना के फेंक रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। जमीन के ऊपर इट इज मूविंग down, it is going up because we have pushed it, we have thrown it with an angle, and it is going up, but then ultimately coming down because of the gravity. और ये रेड बॉल भी इसी तरह से, it is coming down because of gravity. मगर ये जो ग्रीन बॉल है, ये ग्रीन बॉल तो कार है, this is not moving because of gravity, this is because of moving, इसलिए कि इंजन चल रहे हैं। अब हम इसको जरा 3D में देखने की कोशिश करते हैं। Let's see how it looks down in 3D. लो भाई 3D ग्लासेस लगा लो। मैं ये प्लेन्स हटा देता हूँ यहाँ से। नादिर, ये प्लेन्स जो है ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। Z is equal to 0 and where is x equal to 0? All right. नादिर प्लेन ऐनक लगा ली अब? सर ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? सर मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पकड़ लो, इससे पहले कि भाग जाए, पकड़ लो। नहीं सर, पकड़ा नहीं जा रहा। पकड़ा जाएगा, पकड़ा जा सकता है, तुम्हें पता नहीं है इसको पकड़ना कैसे है। अब 3D वर्चुअल रियलिटी में पकड़ लिया। आप देखें कि अब हम इसको जरा 3D में देखने की कोशिश करते हैं। Let's see how it looks down in 3D. ये जरा देखें आप। मैं ये प्लेन्स हटा देता हूँ यहाँ से, इसलिए कि ये प्लेन्स जो है ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। Z is equal to 0 and where is x equal to 0? All right, ये अब 3D वर्चुअल रियलिटी में अब आप देखें कि if I start this, ये जो ग्राउंड पे चल रही है कार, ये यहाँ से चलना शुरू होती है ग्राउंड के एक किनारे से, और ये यहाँ तक जाती है, और ये जो रेड वाली, ये जो दूसरी, सॉरी अब यहाँ तो कलर्स खत्म हो गए होंगे, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है जो किसी ने बॉल फेंकी है, ये देखें जरा, ये जो बॉल फेंकी है ये हमारी तरफ आ रही है, पहले ये ऊपर जाती है और ऊपर जाके चूंकि इसको पुश दिया गया है एक एंगल के साथ, तो ये इस डायरेक्शन में भी मूव करती है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ये ऊपर, जेड डायरेक्शन में ये ऊपर जाती है, इसलिए कि इसको पुश किया गया है, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाती है। सी दैट, कैन यू सी दैट, ये नीचे आना शुरू हो जाती है।
ये नीचे आ रही है और अल्टीमेटली ज़मीन से टकरा जाती है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन इन दी YZ प्लेन है। अच्छा, ये वाली जो मोशन है, ये कैसी मोशन है? इसको ज़रा हम इधर से यहाँ से करके देख लें। ये भी इसी तरह से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से, और ये दिस मूव्स इन द XZ प्लेन परहैप्स। हाँ जी, अब आप देखें ये जरा कि ये मोशन आपको कैसे नजर आ रही है। इन तीनों मोशंस के दो कंपोनेंट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स हैं। जो कार मूव कर रही है उसका भी इसी तरह ही है, जो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहे हैं उनका भी इसी तरह ही है। देखें, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके नाक के ऊपर जाके लगेगी। ये देखिए जरा, कुछ गिराव पड़ी होगी। देखो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? ये जो एक्सपीरियंस है, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे से बॉल पकड़ी नहीं जा रही है। ये बहुत हीट बॉल है। तो आप इसको कितना एंजॉय कर सकते हैं, इससे हम बाद में डिराइव करेंगे कि किस तरह से इनके दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि एक XY प्लेन पर है, एक YZ प्लेन पर है, एक XZ प्लेन पर है। तो इनके दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे और देखेंगे कि एक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दूसरी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से देयर इज एन एक्सेलरेशन इन इट, और उनको हम स्टडी करेंगे। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि 3D के अंदर अगर आप ये 3D में ही देखें तो कितना मज़े का एक्सपीरियंस होता है। इसमें हम और भी चीज़ें आपको करवाएंगे। अभी तो मैथमेटिक्स नहीं आया, अभी तो हम सिर्फ आपको द वंडर ऑफ 3D उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहे। Once there is a twinkle in your eyes, once there is a wonder in your mind, you are motivated to learn, and the start of learning शुरू हो जाती है, क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है, शौक शुरू हो जाता है, और उसके बाद there is no end to learning। इजाजत दीजिए, अशरफ इकबाल। हाँ भाई, कैसा लगा तुम्हें नादिर? सर ये बॉल बहुत डीप थी। ये क्या चल पड़ा बाबा, ये क्या चला दिया? सर ये तो पिछले वाले वर्कशॉप का था। ये तुमने चलाया है ना? अच्छा ठीक है। हाँ तो ये बताओ नादिर, कैसा लगा तुम्हें? सर ये बॉल बहुत डीप थी। बहुत डीप थी? ढीठ थी? ढीठ क्यों थी? सर ये बहुत ढीठ थी। मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की थी, हाथ में नहीं आ रही थी। यार अब बॉल भी अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो फिर तुम्हें मैं क्या कहूँ आगे से? सर मुझे नहीं पता, ये बॉल बहुत ढीठ बन रही है। चलो अगली दफा आराम से फेंकेंगे, फिर तुम ये लो हाथ धो लो इससे। अच्छी तरह चले जी। बाबर साहब आ गए जी? नो सर, अभी नहीं आए। नवाल का इंटरनेट नहीं चल रहा, वो थोड़ी देर में आ रही है। अच्छा चलें फिर हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशॉप फन इन मैथमेटिक्स विद वर्चुअल रियलिटी। हमने ये लास्ट टाइम किया था ना नादिर, याद है तुम्हें? जी सर याद है कि ये दो कंपोनेंट्स थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट था, ठीक है ना? इसको हम जियोजेब्रा में भी जाके देखेंगे,
लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ कि एक कंपोनेंट इसका ये ग्राउंड में चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, कार चल रही है ग्राउंड में, और हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। बाकी लोग भी, क्या नाम है मेरी बेटी का क्या नाम है? फातिमा और दुश्मना। फातिमा और दुश्वाना। देखो ये यहाँ से चलती है, यहाँ से चल के ये गाड़ी यहाँ तक पहुँचती है टाइम में, और ये हमने मुख्तलिफ टाइम कैलिब्रेशन की हुई है। ऑल राइट। तो एक इसका कंपोनेंट टॉप डाउन है, एक कंपोनेंट राइट की तरफ से है। अच्छा, अब हमारे पास दो कार्ड्स हैं, है नादिर? जी सर। समीना आई है हमारे पास? नो सर, अभी नहीं। नादरा नहीं, क्या नाम है? यासर भी नहीं है। यासरा भी नहीं है, और सर बाबर भट्टी साहब, मैं हूँ, आप है, बाबर साहब नहीं है, नवाल नहीं है, और फातिमा है, दुश्वाना है और नादर है। 3 स्टूडेंट है इस वक्त। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि हमारे पास दो गाड़ियां हैं। नादिर, आपसे पूछ रहा हूं मैं, जी सर। एक कार जो है, जब हमने इस गाड़ी की बात की थी तो इसके भी दो कंपोनेंट्स थे ना। ये जो कार थी, रेड कार, इसका एक कंपोनेंट इधर था और एक कंपोनेंट इधर था, ठीक है ना? अब हमारे पास दो कारें हैं, एक कार ऊपर जा रही है, एक कार सिर्फ ऊपर जाती है और नीचे आती है, और उसकी मोशन जो है वो इसके वर्टिकल जो इसका कंपोनेंट था उसी से मिलती जुलती है। समझ आ गया? बिल्कुल वैसी है। नादिर, तुम्हें समझ आ गई बात? मुश्किल है पर यस। मेरे ख्याल में मैं उधर ही चला जाता हूँ, वहां पर जो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता सकूं इन जियोजेब्रा। ये देखो, टाइम में 0 कर देता हूं। जो फातिमा नए आई हैं, ये देखें टाइम में ये 0 है। यहां से कार शुरू होती है, एक कार, ये रेड कार है और ये जामनी कार है। सर और रेड, अभी मेरी इंटरनेट कनेक्शन जो है ना थोड़ी सी फजी हो रही है, तो अगर इफ आई लीव तो मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। यार उस वक्त वापस तुम आ जाओगे, लेकिन उस वक्त टाइम आगे गुजर गया होगा, तुम्हें ये पता है? टाइम वो नहीं रहता। सर मुझे पता है। नादिर डिस्कनेक्ट करके फौरन कनेक्ट कर ले, ठीक हो जाएगा। अच्छा, 1 सेकंड ट्राई करता हूँ। डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट। यार आज का तो बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आज बाबर साहब भी नहीं आए, यासरा तो वैसे ही नहीं आ रही थी, समीना भी नहीं आई। बाबर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि बुध को नहीं रखना, आप जुमरात को रखना। हमने जुमरात को रखा है अभी। हाँ, तो जुमेरात को रखा है ना जी उनके लिए हमने। ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? यस यस। हम बाबर साहब को जहन में याद नहीं रहा, तो वो अभी कुछ टाइम में ज्वाइन कर रहे हैं। कौन? बाबर साहब। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, दर्शवाना। यार कोई डबल वो लगा दो रबड़, ताकि वो टूटे ना। वो तो लग गई है, ये सब मट्टी लग गई थी ना, ये साफ कर रहे वो तो हैं। साफ है, लेकिन ये टूट जाते हैं ना, तो डबल लगा दो। डबल नहीं,
डबल वो ना सारी बहुत टाइट हो जाएंगी, वो ना सिलाइयाँ निकल जाएंगी मेरा। ये है कि घर 1 साल निकालती है बस, ज्यादा ज्यादा। सर मैं आ गया बस। आ गए हो तुम? आ गया हूँ सर। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम आए हो। सर पर मैं आ गया हूँ अच्छा तुम आ गए हो ना। तो अब जरा ये थैंकफुली। देखो, ये देखो, ये रेड कार जो है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मोशन का, वो ये है। लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अब दो कारें हैं, एक रेड कार है और एक जामनी कार है। और जामनी कार जो है उसकी वर्टिकल मोशन जो है, या ये जो ग्राउंड में ये जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, उसकी इस डायरेक्शन में जो मोशन है और जो रेड कार की मोशन है इस डायरेक्शन में, ये एक एक ही बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी है। ये दो कारें हैं। समझ आ गई? जी सर। समझ आ गई बात? हाँ। सर पर एक सेकंड, दूसरी कार कहाँ है? यार पहली कार किधर है? सर पहली कार तो रेड है ना, दूसरी कार ये डॉट है, पर्पल डॉट है। ये है, ये सिर्फ ऊपर जाके और नीचे आती है, यू टर्न करके वापस आ जाती है। ठीक है समझ आ गई सर। और जो रेड कार है वो यूं करके घूम के, ये देखो, ये दोनों को, ये मैं तुम्हें मेल कर दूं, तुम अपने चला के देख लो हैं। सर मेल करें अभी? असल में नहीं सर, अब चैट में ही जो है ना करें। यार मुझे चैट मेल नहीं करनी आती, मैं तुम्हें मेल कर रहा हूं। ये तुम चला अच्छा के सर खुद मैं से। आपको अपना ईमेल एड्रेस बता देता हूँ। यार ईमेल एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, मेरा ईमेल, तुम्हारा ईमेल एड्रेस मेरे पास मौजूद है। अच्छा, गुड। गुड। नादिर, बीकोनाइट। यस बीकनाइट। और ये ताहिर साहब भी शेयर कर लेंगे इसको, और उमर साहब भी शेयर कर लेंगे, और बाबर साहब को भी पहुंच जाएगी, और ये समीना को भी, बाकियों के साथ ये शेयर कर लेंगे। यासरा वकार के पास भी पहुंच जाएगी, शोएब सिद्दीकी के पास भी पहुंच जाएगी। जियो जबरा फाइल, ये तुम खुद से चला के देखो ताकि तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो सको। इसका नाम है वन वेक्टर प्रोजेक्टाइल। ओके। सर तो मिल गया। अभी भेजी नहीं मैंने, तो मिल गया, पागल ओ सर कोई और वो पिक्चर्स थी, हैं। पिक्चर्स भेजी हैं। वो पिक्चर्स नहीं भेजी मैंने, वो नवाल ने भेजी होंगी पिक्चर्स। नहीं सर, आप आ, सर आपका ईमेल है पर ये। मेरा ईमेल 10 लोग इस्तेमाल करते हैं, अब मैंने भेजी है। मैं और भेजिए। एक और फाइल भी भेज रहा हूँ, वो भी साथ ही देख लेना। एक साथ ही भेज देता हूँ ना सारी फाइलें। आ गया सर। हाँ तो अब इसको इस्तेमाल करके जरा देखो ना। टाइम चेंज करके देखो, बाकी लोग भी टाइम चेंज करके देखें। जब तक तुम खुद से करोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। हो गया भाई? लो भैया, ये चेक तो कमाओ। अल्फला बैंक कौन सा बैंक? फैसल बैंक। फैसल बैंक, वो कलेवरी के लोन से करा। यहाँ से करा लो, जहाँ से मर्जी करा लो। तो जाते हुए अभी खुला होगा? अभी तो नहीं खुला, बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ कल होगा। कितने का आता है? 2000। तुम्हें बांध रहता है। अच्छा सर ये मेरे पास आ गया है। आ गया। मैं दूसरी भी भेज दूं ना, 1 मिनट ठहर जाओ। सर कितनी भेजनी है आपने मुझसे? जितनी इस्तेमाल करनी है उतनी भेजनी है ना।
और हमने कितनी इस्तेमाल करनी है? जितनी मैंने भेजनी है, और कितनी आपने भेजनी है? जितनी तुमने इस्तेमाल करनी है। अल्लाह हाफिज। इस्तेमाल करनी है। हाँ जी। अभी फिलहाल यही खोल के इस्तेमाल करनी है, अभी दूसरी नहीं इस्तेमाल करनी। अच्छा, सर अभी मैंने पहले ही खोली भी है। हाँ बस पहले ही खोल के रखो, अभी दूसरी भी आ जाएगी तुम्हारे पास। ये मैं रोज की रोज बनाता हूँ, इसलिए कि मेरा हर, तुम्हें पता है, तुम पहले भी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हो मेरी। मेरी हर वर्कशॉप जो है वो, उसमें नई चीज होती है कोई ना कोई। और देखा सर एक रेड कलर होता है, कोई है? ना कोई रेड कलर होता ही है। यार रेड कलर तो मैं उसके बगैर तो रह नहीं सकता ना। रेड कलर, तुम्हारा तुम्हारा खून सफेद रंग का है? हाँ सर लगता है शायद। यार, मुहावरा है खून सफेद होना। अच्छा, अब ये चला के देख लो, बाकी सब लोग भी चला के देख लें इसको, इसको टाइम को। ओहो, ये मैं इस पे आ गया, मुझे इस पे आना चाहिए था। अच्छा सर, आपको याद है जब आपने हमें एक ट्रैजेक्टरी भेजी थी, मुझे उसका अभी तक कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? जैसे कि जो है ना, आपने मुझे ये भेजी थी, हम्म। मेरी ट्रैजेक्टरी कुछ और ही निकली थी। अच्छा, वो देख लेंगे यार, पहले ये तो तुम चला के देख लो ना। सर मुस्तफा चला आ के गया देख था। लिए। मैं मुस्तफा को फॉरवर्ड कर देता हूँ। सबको कर दें। मुस्तफ़ा आ गए? यस, मुस्तफा आ गया। लेट आया है? यस, सब लेट है। सर अब आप 45 इसको भी डांटते हैं जैसे हम मुझे डांटते हैं, ये वो सिर्फ मेरे लिए ही है। तुम तो मुझे भी डांटते हो साथ ही। सर एग्जैक्टली हम एक दूसरे को डांटते हैं। हम्म। तुम ज्यादा डांटते हो। नहीं सर। अच्छा सर, कोई 3D इमेजेस दिखाएं, मैंने और 3D इमेजेस देखनी है। अच्छा अच्छा, दिखाएंगे 3D। सारा काम, ये सारी वर्कशॉप एक हफ्ते के बाद 3D में ही होगी। सारी वर्कशॉप? हाँ जी। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि ये आ जाएं, ग्लासेस आ जाएं। तो अब आ गई हैं ग्लासेस, तो ये हफ्ता तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना जो हमने शुरू किया हुआ है। इसके भी आखिर में 3D में आ जाएंगे हम। उसके बाद अगले हफ्ते से तो हम सारा काम 3D में ही किया करेंगे, बल्कि ऐनक लगा के ही हम 3D जियोजेब्रा की फाइल बनाएंगे, ऐनक लगा के। बहुत मजा आएगा। ठीक है सर। आज हमारी कौन सी क्लास है यार? 4th सर। 4th क्लास है। तो हम एक और क्लास रख सकते हैं सैटरडे को। हाँ, यस सर। आप जरा मेल कर दें ना, मैसेज कर दें, अगर कोई किसी को एतराज है तो फिर हम बाद में ले जाएंगे सर उसको। हाँ, वीकेंड पे तो ना रखे। वीकेंड पे ना रखें। सर वीकेंड के अलावा वीकडेज पे रख लिया करे, वीकेंड पे ना रखा करे प्लीज। नहीं, एक क्लास तो रख सकते हैं, सिर्फ एक क्लास। क्या ख्याल है? हाँ जी। सर मैंने लगा। हाँ, सिर्फ एक क्लास में ही रख सकते। सर वीक में 3 दिन मिल तो जाते हैं, मतलब फ्राइडे फ्राइडे सच्चे संडे। सर फ्राइडे सच्चे संडे पे ना रखा करे प्लीज।
यार 3 दिन फिर हमें कब रखें बताओ? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन, एक दिन का वक्फा तो मुझे देना है ना तुमने। चले सर फिर ऐसे ही कर ले, लेकिन वेडनेसडे, 5 बजे टाइमिंग। अच्छा वेडनेसडे को नहीं रख सकते इसलिए कि बाबर साहब नहीं होते, तो फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। चल ठीक है सर। तो इस सैटरडे को भी क्लास होगी, ठीक है? अच्छा सर 5 बजे। हाँ जी, 5 बजे। तो अब नाउ वी हैव 2 कार्ड्स, समझ आ गया ना? भट्टी साहब जरा गौर से देखें। अब ये मैं इसमें पेडागोजी में एक ट्विस्ट लेके आना चाह रहा हूं इसके अंदर। जी सर। ये जरा गौर से आप देखिएगा। मैं जी 2 सर। सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, फिर उसका जवाब लिए बगैर दूसरा सवाल पूछूंगा, और दूसरा सवाल का जो जवाब है वो पहले सवाल का जो जवाब आपने सोचा हुआ होगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर मैं पहला सवाल दोबारा पूछूंगा। ये इसको क्या कहते हैं कि आप एक सवाल पूछें, अभी उसका जवाब नहीं आया तो आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर दें या उनको हिंट दे दें या उनको ऑल्टरनेट रास्ता दिखा दें, और फिर दोबारा पहला सवाल पूछें और देखें कि फिर क्या होता है। पेडागोजी में दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। कभी डिस्ट्रैक्शन होती है दूसरे सवाल में, कभी हिंट होता है दूसरे सवाल में, कभी दोनों चीजें कंबाइंड होती हैं। तो अब आप ये देखें कि वी हैव 2 कार्ड्स, बोथ द कार्ड्स हैव द सेम अप डाउन मूवमेंट। ये तो आप लोगों देख चुके हैं ना कि ये रेड कार की भी अप डाउन मूवमेंट जो है वो तो वही है जो ये जामनी कार की है, ठीक है ना नादिर? नादिर, नवाल आ गई? नो सर। अच्छा, बोथ द कार्स हैव द सेम अप डाउन मोशन। ये तो आपको आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। नादिर, आवाज आ रही है? नादिर ऑफलाइन हो या मुस्तफा, तो आपको आवाज आ रही है? आ रही है। ये तो आपको पता है ये जो जामनी कार है ये ऊपर जाके यू टर्न काट के नीचे आ जाती है। लेकिन इस कार का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, ये इधर भी जा रही है, लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो यही है। आपको समझ आ गई ना ये बात? यस ये सर कि वो हाँ, विच कार रीचेज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए? ये यहां पर जब ये पहुंचती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कहना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए? इसको एक खास पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, और उस पॉइंट का हम कह देंगे कि इस पॉइंट पे कब पहुंचती है। ये मैं एक ये वाला लगाया तो ये वाली कार, रेड कार जो है ये यहां कब पहुंचती है, और ये दूसरी कार जो है वो यहां कब पहुंचती है। ये ऊपर जाती है ना, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से फिर ऊपर जाती है। इनको मैं कलर कर दूं जरा। ये मैंने कलर कर दिया। ये बताएं कि कौन सी कार the respective point, the red point। सर नवाल ने ज्वाइन कर लिया है तो थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दें थोड़ा सा। नवाल ने ज्वाइन कर लिया? जी सर। जी सर, फिर से ज्वाइन हाँ, किया। तुमने ज्वाइन कर लिया, तुमने वो उसको कन्वर्ट किया?
सर अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कन्वर्ट करके दिखाऊं? हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर लो। मुझे क्या स्क्रीन शेयर अनशेयर करनी पड़ेगी या वैसे ही ठीक है? वैसे भी हो आपको जाएगी stop सर। करनी होगी। करके दिखाओ। हो जाएगी? हाँ आप करते हैं शेयर, आप ऑटो आ जाएगी आपकी। अच्छा दो मिनट। सर अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे क्योंकि उसका कुछ सेटिंग्स था, इसलिए आप कंटिन्यू करें फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, ये नवाल हम देख रहे थे कि ये रेड कार तुम्हें भी नजर आ रहा है ना, या तुम मसरूफ हो अभी काम करने में? आ रहा है सर, आ रहा है। ये एक रेड कार है और एक ये वाली कार है। ये वाली कार जो है ऊपर जाके वापस यहीं आ जाती है इस रेड पॉइंट पर। ये रेड कार जो है ये यहाँ पे पहुंचती है इस रेड पॉइंट पर। तो ये रेड पॉइंट पर ये कार पहुंचती है इस वाले रेड पॉइंट पर, ये कार पहुंचती है इस वाले रेड पॉइंट पर। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ इसलिए कि दोनों रेड करने का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ओके, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है, या ये ग्रीन टाइप ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे ये बताएं कौन सी कार जो है, नादिर से पूछ रहा हूं, कौन सी कार जो है वो पहले पहुंचेगी? ये कार जो ये ऊपर जाके वापस आती है और ये इतनी दूर जाके वापस आती है। कौन सी कार पहले पहुंच? इससे पहले कि तुम ये जवाब दो, भट्टी साहब आप देख रहे हैं? भट्टी साहब देख रहा हूँ सर। अब मैं ये पूछ रहा हूं, अभी मैंने सवाल पूछा लेकिन उसका जवाब मांगा नहीं अभी के अभी दो। मैं अब ये पूछ रहा हूं विच कार कंज्यूम्स मोर पेट्रोल? ये रेड वाली कार जो है देखें वो तो कितनी दूर जा रही है, यहां से जाके फिर ये यहां तक जाती है और ये सिर्फ ऊपर जाके वापस आ जाती है। अगर मैं आपको वो फाइल में दिखाऊं जो जियोजेब्रा की फाइल है, तो उसमें अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें कि रेड कार की मूवमेंट और ये इस वाली कार की मूवमेंट, जामनी कार की मूवमेंट, ये देखें ये ऊपर गई जामनी कार, रेड कार भी पीक पे पहुंच गई और अब रेड कार भी नीचे जाना शुरू हुई और दूसरी कार भी नीचे जाना शुरू हुई। लेकिन रेड कार जो है वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, जबकि जामनी कार जो है वो सिर्फ ऊपर जाके नीचे जा रही है। तो ये आप हैं जी? टाइम तो उतना ही लगेगा। नहीं यार, टाइम उतना कैसे लगेगा वो? अच्छा, पेट्रोल कितना लगेगा? सर रेड वाली को पेट्रोल ज्यादा लगेगा। तो फिर इसका मतलब टाइम भी ज्यादा लगेगा। नहीं नहीं क्या? सर ये तो बहुत ही ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है ये तो। सर रेड वाली को फोर्स ज्यादा लगेगी ना, टाइम तो उतना ही लगेगा। फोर्स ज्यादा लगेगी क्या मतलब यार? पेट्रोल भी ज्यादा लग रहा है, उसका डिस्टेंस भी ज्यादा वो कवर कर रही है, इसका जब वो मतलब ये है। तो जब वो डायरेक्शन चेंज करेगी तो ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा क्योंकि इसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज करने की बात छोड़ो, वो हो सकता है वो जैसे गाड़ी जाती है आगे और पीछे, वो इसी तरह ही जा रही है, उसको छोड़ो, यू टर्न को छोड़ दो, वो सीधा जा रही है फिर वापस जा रही है, बैक करती हुई जा रही है, ठीक है। विच कार कंज्यूम्स मोर पेट्रोल? और फिर अगेन वी आस्क द सेम क्वेश्चन, which car reaches its respective its destination destination कहते हैं। और आपको पता है डेस्टिनेशन का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन पॉइंट फर्स्ट, ये मैं डेस्टिनेशन विच कार रीचेज द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन कर दूं बिकॉज दैट वाज कंफ्यूजिंग।
मुस्तफ़ा आप जरा बताइए मुझे, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सी कार, ये रेड वाली या वो दूसरी वाली? मैं आपको दोबारा, मुस्तफ़ा आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है। ये मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ कारों को, दोनों कारों को। एक कार तो बहुत ज्यादा फासला तय कर रही है, पेट्रोल भी बहुत जाया हो रहा है। एक कार सिर्फ ऊपर ग्राउंड पे जा रही है, ये कोई हवा में नहीं उड़ रही कार, हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ड्रोन से देख रहे हैं हम। तो ये एक कार ऊपर से जाके नीचे आ जाती है, ऊपर जाके ये देखें, ये यहां से चली, ऊपर आई, ऊपर आके ये नीचे आ गई। बस कौन सी कार जो है वो ये जो वापस आती है, इसकी डेस्टिनेशन ये है, इसकी डेस्टिनेशन ये है, कौन सी कार पहले पहुंचेगी? बताओ भाई मुस्तफा। मुस्तफा सर वो पर्पल वाली। हाँ पर्पल वाली है, पर्पल वाली। पर्पल वाली पहले पहुंचेगी? यस सर। हाँ तो देखा ना, आप सही जवाब आया ना। और पेट्रोल किसका कंज्यूम ज्यादा होगा? रेड वाली का। रेड वाली का, बिल्कुल सही। नादिर अब बोलो तुम। सर नादिर नहीं है, नादिर नहीं है, नवाल है। दर्शवाना भी है, नवाल। दर्शवाना से पूछते हैं। हाँ दर्शवाना तुम बताओ, कौन सी कार जो है, मैं दोबारा चला के दिखा देता हूं, ये देखो ऊपर गई, ये रेड वाली भी ऊपर जाती है, लेकिन रेड वाली जो है वो राइट की तरफ भी जाती है, देखो राइट की तरफ भी जाती है। जो जो जामनी कार है वो सिर्फ ऊपर जाती है, वो राइट लेफ्ट मूव नहीं करती। ये कौन सी कार जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचेगी? दर्शवाना। दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। यार क्या बात कर रही हो दर्शवाना, कैसे हो गया ये? उसका पेट्रोल भी इतना खर्च हो रहा है, उसके पता नहीं कितने 100 माइल भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। जो जामिनी कार है वो उसकी स्पीड कम है और वो कम स्पीड डिस्टेंस कम? कवर ना ना करी है। ना, जामनी कार की स्पीड कम नहीं है। जामनी कार की स्पीड जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, जामनी कार की तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है, और वो वही है जो वर्टिकल डायरेक्शन में रेड कार की स्पीड है। और जामनी कार की जो राइट डायरेक्शन में स्पीड है वो 0 है, जबकि लाल वाली कार की राइट डायरेक्शन में स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है। तो हाँ अब जी, बताओ। तो सर रेड वाली की तो स्पीड ज्यादा हो गई ना रेड वाली की। हाँ स्पीड ज्यादा है, उसकी तो 0 है ना। तो रेड वाली की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है उसी टाइम में जिसमें वो ज्यादा देर लगाएगी। नहीं, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। यार मुस्तफा तो ये इनको बताओ ना, जरा समझाओ इनको। सर आई थिंक ये लोग वो आपकी स्क्रीन देख के बता रहे कि दोनों वो एक ही टाइम पे पहुंचते हैं, वो तो डॉट्स। इनसे आर्गुमेंट करो ना भाई। तो मैंने तो डिस्टेंस से किया है कि पर्पल वाली का थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो जल्दी से हो जाएगा उसका फासला, लेकिन रेड वाला तो पूरा उसकी कवर करना है। अब दर्शवाना तुम जवाब दो ना इसको। दर्शवाना इसको जवाब दो भाई। मुझे लगता है कि ये जो पर्पल कार है ये इसका डिस्टेंस कम है और वो पहले एक चीज ये कि वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचती है, एक ही टाइम पे शुरू करती है अपनी जर्नी और उसकी रेड वाली कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और पर्पल कार कम डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन वो फिर भी एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। कैसे, ये कैसे मुमकिन हो गया? क्योंकि जब रेड वाली कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है और जब पर्पल वाली कार ऊपर होके नीचे आती है तो वो एक ही पॉइंट पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। ना देखो यहाँ से चलती हैं। अच्छा वैसे टाइम जरा देख लेते हैं। मुस्तफा जरा यहाँ पे टाइम देखो और यहाँ पे टाइम देखो। वे ये तो टाइम तो एक ही आ रहा है, ये क्या चक्कर हो गया है?
सर उसमें मुझे अब समझ आई है सर, पर्पल वाले की डिस्टेंस तो हम लोग इसलिए हमें कम लग रहा है क्योंकि हम तो एक ही दफा में देख रहे हैं, लेकिन उस डिस्टेंस को डबल करें तो वो रेड वाली जितना ही बनेगा ना। नहीं जनाब, नहीं जी, क्यों? आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप ये बेशक सोच लें, रेड वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, तो इसको डबल भी कर लो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से रेड वाली की स्पीड ज्यादा होगी। यार ये बताओ कि एक टाइम पे पहुंचेंगी या नहीं? एक टाइम पे पहुंचेगी। मुस्तफा तुम्हारा क्या ख्याल है? सर पता नहीं, अब मैंने तो अपना आंसर दे दिया था। नहीं दिया तो इनसे आर्गुमेंट करो ना यार। ये देखो बात सुनो, इसमें जब तक हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे जब तक आगे चल नहीं सकते ना। मुझे अब ये बात नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है, तुम्हें क्या चीज ये प्रॉम्प्ट कर रही है, क्या चीज तुमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि दोनों कारें मुख्तलिफ टाइम पे पहुंचेंगी। तुम इनको बताओ ना, ताकि ये तुम्हारी बात ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तुम्हारी एज के बच्चे हैं ना, बताओ, मेक एन आर्गुमेंट। सर वो पेट्रोल पेट्रोल कवर कर रही है तो होटल क्या? मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो तुम। हाँ भट्टी साहब, आप मेरी जरा समझने की कोशिश करें। जी सर। लेकिन ये मसला वहीं आके फंस गया ना फिर। सर पहला कमेंट तो मेरा ये है कि सर वो आपकी जो टेक्निक है वो बड़ी इफेक्टिव है इस वक्त ना, कि उन्होंने वो उनको उस पॉइंट पे ले आए हैं कि वो आर्गुमेंट को डेवलप होना ही पड़ेगा। नहीं लेकिन अब उल्टा काम हो गया ना, वो इतना इतना ज्यादा मैंने ओवरडू कर दिया है कि अब वो मतलब मानने को तैयार नहीं है मुस्तफा। जी सर, वो ऐसी मुस्तफा का मेरा ये ख्याल है कि अभी उसने चूंकि कोर्स पहली दफा ज्वाइन किया है ना, तो उसका वो जो रेशिया है ना आर्गुमेंट का, वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ जो कि अब मुझे हमारी एक किस्म की नीड है। नहीं तो जैसे अब इसका नवाल और वो तो अपना दूसरा हाँ तो नादिर है, वो जिस आप कर सकते हैं। हाँ जी। इनको तो बताते रहे ना, बताते रहे, लेकिन दर्शवाना तो पहली दफा आई है ना। देखें दर्शवाना पहली दफा आई है। आंसर के करीब पहुंच गई ना वेरीफाई, तो उनसे भी आर्गुमेंट स्टार्ट नहीं हो सका। अगर somehow, उनका आंसर हम गलत प्रूव कर सकते हैं तो फिर आर्गुमेंट स्टार्ट हो। आप दर्शवाना से जरा क्रॉस क्वेश्चनिंग सर करें तब ना। तक मैं स्क्रीन चेक दिखा हाँ शेयर कर दो चलो। दर्शवानी दूसरा दूसरा क्वेश्चन सर ने कहा था, उसका उसका जरा आंसर बताएंगे आपके, पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल किस केस में ज्यादा एक्सपेंड होगा? आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात कैच नहीं किया, फिर से बोल सकते हैं? जी ये मेरा यानी कि जो सर का दूसरा क्वेश्चन है ना, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है कि जो पेट्रोल है वो किस गाड़ी का ज़रा लग रहा है? रेड वाली का, क्योंकि उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। वो जो पर्पल वाली वो तो सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जाती है ना, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ऊपर वाले एरिया में। तो फिर तो इसका मतलब टाइम भी मुख्तलिफ होंगे। जब अच्छा, टाइम ये पेट्रोल इसमें चीज भी देखें, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, आप ये देखें, आप ऊपर से देख रही हो, ये किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर नहीं जा रही दोनों गाड़ियां। मतलब ऊपर से देख रहे हैं ना हम, ये ग्राउंड के बीच में ही चल रही है, ग्राउंड के एक साइड से चलती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ से फिर वापस आ जाती है। ऊपर ऊपर तो नहीं जा रही, लेकिन मतलब कहने का यह है कि एक गाड़ी ज्यादा सफर कर रही है, एक गाड़ी कम सफर कर रही है। तो दर्शवाना, जब जो गाड़ी ज्यादा सफर कर रही है उसका तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। नहीं, पेट्रोल आई थिंक इसमें स्पीड आ जाती है कि वो जो रेड वाली कार है उसकी स्पीड ज्यादा है और उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और पर्पल वाली कार ने की स्पीड नहीं, उसके डिस्टेंस कम है। और पेट्रोल पेट्रोल रेड वाली ने ज्यादा लिया है क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ये भट्टी साहब, ये पेट्रोल से क्या फर्क क्या पड़ा है पेट्रोल को बीच में लाने से?
पेट्रोल आसिफ, सर जैसे मुस्तफा कमेंट सुना है कि वो जरूर इससे डिस्ट्रैक्ट हुए। मुस्तफा आप बताएं, आप पेट्रोल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं? मुस्तफा का है और मैंने डिस्टेंस की और डिस्टेंस की वजह से पेट्रोल का तो था हल्का, लेकिन मोस्टली मैंने डिस्टेंस पे देखा है। ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है गाड़ी तो ज्यादा देर में पहुंचेगी वो, हैं? ठीक है। सर हाँ जी, पेट्रोल फिर से बताओ। सर वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, पेट्रोल भी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो पूरी देर लग जाएगी। हाँ तो ये दर्शवाना से बात करो ना तुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ मुस्तफा। दशवाना आप अपना माइक ऑन कर लें। चलो नवाल आप शेयर कर लें जरा स्क्रीन। जी सर। तो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? यार मैं बड़ा कैसे करूं? सर उस पर डबल क्लिक करें, हो जाएगी। नहीं होती। स्काइप पे क्लिक करें, हैं? स्काइप पे क्लिक करें, स्काइप नीचे से स्काइप ऊपर आ जाएगा, वो जो बार में पड़ा हुआ नीचे। सर एंटर फुल स्क्रीन जो है ना सर, उस पे होगा कंटेंट, जो आप कंटेंट व्यू है ना वहाँ पे आगे 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 नीचे आगे। तो ये 3D बन गई है तस्वीर? नहीं अभी मैं बनाने लगी। मैंने आपको ये इधर से ना जो आपकी हाँ। लेयर है उसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये बाकी लोग भी भाई जरा देखें, मैंने आपको और तस्वीरें भेजनी है, वो आपने इस तरह से कन्वर्ट करके भेजनी है। जी दर्शवाना करें। तो अब ये जो लेयर है ना इसको डुप्लीकेट किया है, ठीक है? इस लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद राइट क्लिक करने से ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आके यहाँ पर लिखा होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है? G और B को हम लोगों ने डिसेलेक्ट करके सिर्फ R को रहने देना है। यहाँ पर अगर जैसे नीचे वाली लेयर है उसको अगर हम लोग बंद करें उसका व्यू, तो ये पिक्चर रेड हो जाती है। ये रेड कैसे हुई है, फिर से बताओ। ये देखें सर, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये ना ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। ब्लेंडिंग ऑप्शन किधर है? सर, इसको राइट क्लिक करेंगे ना आप लेयर पे, जो आपने लेयर जो दूसरी लेयर बनाई है ना जिसको डुप्लीकेट, उसके ऊपर राइट क्लिक करने से ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। किधर तो किधर आई है? हमें तो नजर नहीं आ रही। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ऐसे मैंने राइट क्लिक किया है, ये लिखा हुआ है ब्लेंड। यहाँ तो कोई ब्लेंडिंग नहीं लिखा हुआ सर ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं। नो नहीं नजर आ रहा ब्लेंडिंग का। नादिर आ गया दोबारा से, फिर चला गया। चले अच्छा, शायद हो सकता है। ये क्या हो गया? आपकी स्क्रीन नहीं ऑफ हो गई है, स्क्रीन शेयर। हाँ जी मैं भी अभी हाँ आ जी। रही है। अब आ गई ना? अब ये देखिए, अब आ रहे हैं ना ब्लेंडिंग ऑप्शंस? नो नहीं आ रहा। चलें खैर, आप ऐसे ही चलते हैं, आगे चलें। अच्छा ठीक है, फिर ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप राइट क्लिक करेंगे तो नजर आ जाएगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस लिखा होता है। ये अब नजर आ रहा है डायलॉग बॉक्स, ठीक है? यहाँ पर RGB लिखा हुआ है, रेड ग्रीन ब्लू। तो आपने ग्रीन और ब्लू को डिसेलेक्ट करके सिर्फ रेड को रखना है, ठीक अच्छा। है? फिर आप नीचे वाली लेयर को जैसे इसको डिसेलेक्ट करेंगे ना, ऐसे बंद करेंगे तो पिक्चर सारी रेड नजर आएगी। लेकिन अब दोनों को फिर जो मूव सेलेक्ट टूल, ये जो मूव वाला टूल होता है ना, उससे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको मूव करना है। करें मूव। नजर आ रहा है? मूव अभी होता हुआ नजर तो नहीं आया। ये देखें, अब आया? हाँ अब आए। हो गया। अब ये 3D हो गया इफेक्ट? हाँ जी सर।
अच्छा, अब ये इसको कितना मूव करना है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ तो जी जरा थोड़ा करीब लाएं मेरे ख्याल में। ये बाकी लोग भी जरा देखें जी कहाँ पे 3D उनको वो समझते हैं कि वाकई 3D है, इफेक्ट आ गया है। इसको जरा आप ऐसा करें ना कि थोड़ा सा आगे पीछे मूव करें, थोड़ा सा मूव करें और कम करें या ज्यादा करें कि हम देखें। हा, बस 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 यहीं पे रखें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। ये अब यहाँ पे डेप्थ नजर आई है। हाँ जी वेरी गुड नवाल, यू आर डूइंग द बेस्ट। आपको तो PhD मिल जानी चाहिए। सर, काश इसमें PhD मिल जाती होती। तो मैं दे देता हूँ PhD आपको। थोड़ा सा और कम करें। रुकें सर 2 मिनट। कम करूं या ज्यादा करूं? जो जो पहले किया था वही करें ऑपरेशन। अच्छा, ये देखें। नहीं, वापस जाएं। अब हाँ अब ठीक है, और ज्यादा करें। फिर से वो डबल पिक्चर नजर आने लग जाएगी आपको। हैं? आपको डबल डबल पिक्चर नजर आएगी फिर यहाँ से। अच्छा, इसको और मजीद करेंगे तो डबल पिक्चर नजर आ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वो सही रहता नहीं है। हाँ नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। अब करीब लाएं। आ आ बस 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 बस। बाकी थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, और जरा, और ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और और नवाल और करें। सर, उस तरफ को करूँ, उसको, उसका डिस्टेंस ज्यादा करूँ कि कम करूँ? डिस्टेंस ज्यादा करें। अच्छा, अब और करें। और करें। अब खराब हो रही है। डबल डबल नजर आती। हाँ, अब पीछे ले जाएं वापस। अब मेरे ख्याल से सही है ये। और थोड़ा पीछे ले जाएं। और नहीं, अब फिर डबल हो जा रही है ना। सर, अब डबल तो नहीं नजर आ रही। अच्छा नहीं, अब और करें, जितना कर सकती हैं करें। डिस्टेंस ज्यादा कि कम? ज्यादा इसे ग्लासेस के साथ देखना है, है। इसे ग्लासेस के साथ देखना है। हाँ हाँ, ग्लासेस के साथ ही नजर आएगा ये। तो स्क्रीन नजर नहीं निकलती नहीं है अंदर से। हाँ जी और सही, इफेक्ट नहीं आता। है। मैंने आपको जो दूसरी भी भेजी थी ना, उससे मुझे खुद भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं फील हो रहा था 3D का, जितना बाकी पिक्चर्स में होता है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको इतना ज्यादा ये फिट फील क्यों नहीं हो रहा? बस इसको यहीं पे रखें। अब आपने आगे नहीं लेके जाना, बस यहीं रखें। ये आप बता सकती हैं कि ये इतना ज्यादा फिट फील क्यों नहीं हो रहा? कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये इतना ज्यादा फिट फील क्यों नहीं हो रहा? अनशेयर कर लें अपनी स्क्रीन। सर बहुत ज्यादा कलर्स हैं, इस वजह से आप जो करते हैं उसमें सिर्फ 2 कलर यूज करते हैं आप। मैं अपनी शेयर स्क्रीन कर लूं? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये फिट इतना नजर क्यों नहीं आ रहा? ओ सर, मैं पीछे साइन भी ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने भी सिर्फ रेड किया तो रेड और साइन नजर आ रहे हैं। है? अगर मैं दूसरी लेयर साइन की बनाऊं हाँ, तो शायद फिर बेटर नजर आए। चलो करके देखो। हाँ सर, ये मुझे भी ये लगता है। अच्छा, करके देखो, चलो शेयर करो स्क्रीन। मैं अनशेयर कर देता हूँ। जी।
हो गई। मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं कर रही हूँ सर। अब आपको नजर आ रहा है? नहीं। तो हाँ अभी अब आ नजर, रहा। अब ठीक है, नजर आ रहा है। अब मैं दूसरी लेयर बनाने लगी हूँ। कलर वाली खत्म कर देनी मेरे ख्याल में। नहीं ये ना, जैसे पहले मैंने रेड रखी थी ना, अब मैं एक साइन की भी बना रही हूँ। ये देखिए, ये साइन की है। और अगर मैं, आप थोड़ा बेटर आ रहा है 3D का इफेक्ट? सर रूम की डेप्थ नजर आ जाती है कि अंदर कोई चीज है लेकिन निकलता नहीं है। रूम के अंदर चला जाता है वो। हाँ हाँ जी सर, ऐसा लगता है कि हम रूम के किसी अंदर देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, लेकिन वो निकलते नहीं कुछ अंदर से। डेप्थ आ जाती है नजर। हाँ जी, डेप्थ आती है सिर्फ। अच्छा, दोनों को अलग करके क्लिक करके देखो कि सियान को मिलाओ या दूसरे को मिलाओ तो कौन सा बेहतर रहता है। ये रेड है ना, ये सियान है, ये सियान है। अब मिलाओ। ये दो साथ किए। और अब सियान को छोड़ के वो कलर्ड वाली पिक्चर मिलाओ। ये देखिए, अब मैं रेड मेरे को में छोड़ वाली, ये ज्यादा अच्छी है। ये वाली, हाँ ये ज्यादा बेहतर है। मैं अगर से सियान की, अगर मैं रेड को छोड़ के सियान वाली मिलाऊं तो मूवी चेक नहीं सर, रूम की डेप्थ नजर आ जाती है। सियान वाली का तो पता ही नहीं। ये भी ठीक है यार। ये फील हो रहा है आपको 3D? सर अंदर डेप्थ नजर हाँ आ रही है, मतलब कि अंदर जा रहा है किसी चीज में, लेकिन मतलब कमरे में जा रहा है लेकिन निकल नहीं रहा कुछ भी। निकल नहीं रहा। अच्छा बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ठीक है जी। एक पिक्चर लगती है। हैं फिर मुस्तफा मतलब वो तो होने के बजाय एक पिक्चर लगती है। हाँ मुस्तफा तुम कह रहे हो ना, यू आर मुस्तफा। हाँ हाँ जी। ठीक है, अनशेयर कर लो या स्क्रीन। जी सर, अगर मैं इसके ऊपर 2-4 और वीडियोस देखूं तो शायद नहीं अच्छा, मुझे अब आप ये बताइए भट्टी साहब जी सर। कि ये इनको वो इफेक्ट पूरी तरह क्यों नहीं नजर आ रहा जो कि अदरवाइज हमें नजर आता है। सर इसमें तो मुझे जो समझ आ रही है कि वो डेप्थ जो है ना, उसके हिसाब से इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। सारों की डेप्थ एक नहीं है और सारों का हमने इसको यूनिफॉर्मली सारों का वो इमेज जो है ना वो हमने उसको चेंज किया है। What are you trying to say? कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन you are not using the right words. क्योंकि इसमें जो डेप्थ है, डेप्थ के हिसाब से हमें वो उसका उनको हर एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए था, मगर वो यार वो तो आपने रिपीट कर दी ना अपनी बात, लेकिन इसका कुछ मतलब है जो आम अल्फाज में समझ आ जाएगा लोगों को। वो क्या चीज है? ये जरा देखें जी, ये जो चीज है ना, इसको जरा ऐनक से देखें। हाँ जी सर, ये निकलता है ये बाहर निकल रहा है ना? हाँ सर, जी लेकिन निकल इसका रहा है। फैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पता नहीं। लेकिन हैं? सर ये मेरे ख्याल से बहुत दूर है, तो दो पिक्चर्स नजर आ रही है, सिर्फ एक नहीं नजर आ रही। क्या हाँ क्या जी सर, क्या दो नजर आ रही है, इसका फैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या? सर सर मुझे लगता उसमें है दो रेड और ब्लू लाइंस के बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए दो पिक्चर्स नजर आ रही है। नहीं वो पीछे नजर आ रही है लेकिन उसके बाहर तो निकल आई है ना पिक्चर। नहीं सर, बाहर अब नहीं हो रही। हाँ नहीं सर, सर वो वाली पिक्चर दिखाई वाला में देखिए, कल थी या कल परसों थी, कौन सी वाली? जिसमें सर असली में वो जो निकल गई थी, हैं? सर जिसमें वो निकल गई थी और पिक्चर असली में। इसमें जरा गौर से देखो, इसमें निकल आई है तस्वीर बाहर।
नहीं सर, मेरे लिए नहीं निकल रही। यार तुम गौर से देखो ना इसको, इसमें तस्वीर अगर तुम ऐनक सही लगा के देखो तो भट्टी साहब और ताहिर साहब, वो जो पीछे तस्वीर बन रही है वो उसको छोड़ें, जो बाहर निकली है वो ये ब्लैक कलर की है। हाँ जी सर, वो नजर आ रही है। ओ सर, निकल आई, निकल आई। ये कौन बोल रहा है? मैं ही। तुम कौन हो? मुस्तफा। मुस्तफा नादिर तो नहीं है इस वक्त? नादिर तो नहीं मुझे है, नवाज निकल आई है। वापस आना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा लग रहा है फुटबॉल होया हुआ है, फ्लैट सा फुटबॉल। हाँ तो ये मुस्तफ़ा ये बिल्कुल बाहर निकल आई है ना। जो नवाल ने बनाई है वो बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई थिंक शी इज डूइंग एक्सीलेंटली। मगर उसमें ये डेप्थ का परसेप्शन तो हुआ है, लेकिन तस्वीर बाहर निकल के नहीं आई है। अच्छा, आप को मैं ये बता दूं कि नवाल को मैंने मैसेज किया था, ईमेल की थी, आप सबको भी की थी ईमेल इनफैक्ट, कि आप लोग वो जो यूट्यूब की वीडियो है वो देखें, जिससे हम 3D इफेक्ट, ये जो हमारे पास रेड और ब्लू ग्लासेस हैं, इनसे 3D इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नवाल तुमने वहीं से देख के किया है ना? हाँ जी, वहां से देखे सर। तो इसने जो कुछ भी किया है इसने वहां से देख कर किया है, और इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि भट्टी साहब इसमें इसने क्या किया है कि दो कलर्स लेके और एक कलर की तस्वीर को शिफ्ट कर दिया है। भट्टी साहब, किस चीज की कमी रह गई है? देखें, सादा अल्फाज बताएं। जैसे इस तस्वीर में आपने किया, हाँ जी। ब्लैक वाली भी आपने इसमें ब्लैक वाला भी डाला हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये एक चीज की कमी रह गई है इसके अंदर, और वो इसमें शायद, हाँ इसमें इसमें भी नजर आ रही है। ताहिर साहब, आपसे पूछूं मैं तो आप क्या कहेंगे कि क्या किस चीज की कमी रह गई है जिसकी मेरे वजह ख्याल से? से कोई हाँ जी। एंगल वगैरह का इशू हो सकता है कोई। एंगल का क्या मतलब? आप देखें ना, अल्फाज जो हैं वो इस तरह के इस्तेमाल करें कि वो सबको अब एंगल का इशू हो सकता है, ये तो एम्बिगुअस सी बात हो जाती है ना। सर मुझे लगता है नवाल जो है ना, सिर्फ उससे राइट और लेफ्ट कर रही थी, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करती तो मैं भी ऐसी लोकेशन पे आ जाती। ऊपर नीचे करती? हाँ, ऊपर नीचे भी करती और राइट लेफ्ट भी करती तो मैं भी ऐसी कोई लोकेशन आ जाती। कि ये आपकी एक आप देखें, आपकी आंखें ऊपर नीचे नहीं लगी हुई। ये अगर तो बात तो आपकी आंखें ऊपर नीचे लगी हुई होती ना तो फिर इसको ऊपर नीचे करने से फर्क पड़ जाता। सर वैसे मुझे ना नोटिस की है, हाँ। एक ना मेरे गूगल पे वो बहुत अच्छा उसका 3D इफेक्ट आता है, तो मैंने इसे नोटिस किया कि जो जो चीज 3D निकल के आती है ना सर, वो जो हम्म, जैसे उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो 3D निकल के आता है, वो हम्म, ऑब्जेक्ट का साइन लेफ्ट लेफ्ट को है और रेड राइट को है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड है वो उल्टा है। अच्छा तो अगर मैं जैसे अगर मैंने सिर्फ आपकी जो आपने जो पिक्चर भेजी है उसके अंदर जो आपका है, सिर्फ उसको अलग से मैं एडिट करूँ और पीछे वाली को अलग से एडिट करूँ तो शायद फिर आपकी जो पिक्चर है ना वो निकल के आ जाए। करो। सर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं लेकिन एक और भी चीज है, तुम हो सकता है तुम बात सही कर रही हो, लेकिन एक और चीज भी है जो हम, लेट मी सी इफ आई कैन, न्यू विंडो, और यहां से हम
मैं एक तस्वीर को रख रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं आपको इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D इफेक्ट के अंदर। ओहो, या ये क्या मसला हो गया? एक मिनट, ये ज़रा मैंने बटन गलत दबा दिया। ओके, लेट मी ये दोनों ही चलें देख लेते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं। दोनों आगे पीछे करके भी देख लेंगे और एक साथ भी देख लेंगे, दोनों तस्वीरें आ जाएंगी अब एक साथ। सर अब देख रहे हैं? अभी नहीं, अभी ऐनक नहीं लगानी, मैं अभी बताता हूँ कब लगानी है ऐनक। ओहो, ये क्या फिर से वही गलती की है मैंने जो पहले कर रहा था। अच्छा खैर, ये हो गया ना यहाँ पे। अब मैं ग्लासेस, अब ग्लासेस लगाओ भाई। अब ग्लासेस लगाओ भाई, जरा देखो। अब सर ब्लरी क्यों नजर आ रहा है? नहीं यार, बिल्कुल ब्लरी नजर नहीं आ रहा। अब तो पीछे जो दूसरे वो थे वो भी नजर नहीं आ रहे, अब तो बिल्कुल बाहर निकल आया है। हाँ जी, बहुत सही 3D इफेक्ट आ रहा है इसका तो। ये देखो, अब वो पीछे वाला पीछे चला गया है, आगे वाला आगे आ गया है। देखो जरा, यस सर। लुक एट हाँ दैट। सर स्क्रीन से बाहर ही निकला लेकिन फुल 3D इफेक्ट आ गया। कैसा लग रहा है कि इधर है? आ तो गया लग ना रहा है 3D इफेक्ट, है ना? मुझे तो बस सही, बस बुरी तरह से बाहर नहीं निकला है, पूरी तरह निकला है यार। तुम जरा गौर से देखो, तुम्हारी ऐनक सही नहीं लगी हुई, या तो फिर सर मुझे तो सही नजर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकला। स्क्रीन से बाहर निकल आया है और पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। पीछे वाला बिल्कुल नजर सर। ये जो सियान ग्लासेस के मतलब ये जो लेफ्ट और राइट पे एक दो चीज मतलब कोई चीज लगी होती है, वो मैं इससे गलती से घूम गई थी। क्या इसकी क्या? वजह से तो नहीं, मेरी सियान ग्लासेस ये जो भी है इसकी ना लेफ्ट और राइट पे कोई मतलब आई थिंक शीशा लगा था, कुछ लगा था जो मुझसे घूम गया। इसकी वजह से तो नहीं कुछ हो रहा मुझे, मतलब वो जो पिक्चर मैंने का इफेक्ट। तुमसे कहा था 2 ग्लासेस मंगवानी है, नहीं लेकिन सर, मेरी टूटी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 ग्लासेस मंगवा लेना। एक ग्लास और मंगवा हाँ लो, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास है एक और। नवाल यहाँ पे, भट्टी साहब आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? भट्टी साहब, हाँ सर, अब निकल आया है। निकल आया ना बाहर? हाँ ताहिर साहब, आपने देखा है? वो सर मेरी क्लासेस अभी नहीं आई। आपकी ग्लासेस ही नहीं आई माशाल्लाह से। या सर मैं थोड़ा और जगह रहता हूँ, इधर लेट आती है चीज। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? आप माउंट एवरेस्ट में रहते हैं? मैं लाहौर वगैरह में जल्दी आ जाती है ना, मैं आजाद कश्मीर में रहता हूँ तो इधर लेट आती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये अब नादिर नादिर तो है नहीं यहाँ पे, है ना? अब नो, ऐसा करें, नादिर नहीं है। आप ऐसा करें दर्शवाना कि है। दर्शवाना दर्शवाना जी दर्शवाना, तुम्हें ये बाहर निकलती हुई नजर आ रही है? हाँ हाँ जी नजर आ रही। यार, तुम ये जो जिस तरह से हल्के हल्के हाँ बोल रही हो ना, तो इससे ये तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि तुम्हें चीख के कहना चाहिए हाँ। इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन हाँ है। नहीं यार, इसमें तो बहुत ज्यादा लग रहा है नवाल, बहुत ज्यादा है ना इसमें। मुझे तो हाँ सर नहीं, सही नजर आ रहा है।
हैं? सही नजर आ रहा है अब आ रहा है ना नजर? जी। सर आपने क्या डिफरेंट किया है? हैं? आपने इसमें क्या डिफरेंट किया है? मैंने क्या डिफरेंट किया है इसमें? ये हुई ना बात फिर तुम्हारी। मैंने कोई चीज डिफरेंट नहीं की, वो तो इसी ने किया है, जियो जबरा ने किया है। जियो जबरा जो है वो तस्वीर को लेकर, जैसे तुमने तस्वीर ली थी, उस तस्वीर को रेड और सियान में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? लेकिन और उसके बाद वो शिफ्ट भी करता है, लेकिन शिफ्ट के साथ वो एक और चीज भी करता है जो तुम नहीं कर सकती थी। अगर चाहती भी वो तो क्या नहीं सर? कर सकती। तुम अगर चाहती भी सही ना कि उस तस्वीर में कर सर दो, हैं? नहीं तो क्या करता है, क्या है? हाँ, ये मैं अब तुमसे पूछना चाह रहा हूं ना। मैंने अगर सब कुछ बता दिया तो फिर बात तो खत्म हो जाएगी। वो तस्वीर जो थी उसमें एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी, इसमें वो इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है। ये अब जरा ऐनक उतार दो, सर इसमें दूसरे कलर? ऐनक उतार दो। हाँ जी। अब मैं देखो इसको हर तरफ से, ये 2D पिक्चर बन गई ना, लेकिन मैं इसको हर तरफ से देख तो सकता हूं ना। इट्स अ सियान हाँ एंड जी। रेड पिक्चर, ठीक है? ठीक है ना? ये जी। रेड सियान पिक्चर, लेकिन मैं इसको किसी तरफ से भी देख सकता हूं। वो जो पिक्चर यस थी, वो मेरी जो तस्वीर थी, उसमें तुम उसको पीछे जाके नहीं देख सकती थी मेरे। सर, लेकिन गूगल पे अगर आप पिक्चर्स गूगल करें तो काफी सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आप जिस तरह से भी करें तो फिर भी उनका 3D इफेक्ट आता है। अच्छा, मैं पहले तुम्हें वजह तो बता दूं ना कि क्या हुई है वजह। अच्छा। देखो, इसके अंदर जो ग्रीन है ना, रेड है और ये ग्रीन है, हाँ? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हाँ जी। ये जो लाइन है, ये एक रेड है और एक सियान है। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? नहीं, ओ पैरेलल नहीं है। क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं? ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें, नहीं क्या नहीं। क्या ये दो लाइनें नहीं है ये पैरेलल? इसका मतलब ये कि इसने, जियो जबरा ने क्या काम किया है, इसने ना सिर्फ इसको शिफ्ट किया है, बल्कि मैं तुमसे कहलवाना चाहता हूं, फिर इसकी शेप भी चेंज की। ना ना, शेप तब्दील नहीं की यार। जब तुम कोई चीज, अच्छा तुम अब ऐसा करो, कमरे में कोई चीज अपने आंख के पास रख के देखो, ज्यादा दूर ना हो, 1 फुट के फासले पर हो, एक आंख बंद करके देखो, एक फिर दूसरी आंख बंद करके देखो, तुम्हें देखो क्या फर्क नजर आता है। क्या सिर्फ वो डिस्प्लेस नजर आती है, शिफ्ट नजर आती है, या कुछ और भी फर्क नजर आता है? सर एक का साइज छोटा और एक का बड़ा है। नहीं 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 नहीं, साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब वो किसी और तरफ इसकी जैसे थोड़ा रहता सा है। एंगल चेंज किया इसने, मैंने चेक किया। मैंने क्या हो जाता है? एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंगल क्या क्या होता है यार? एंगल तो मतलब एंगल तो दो लाइनों के दरमियान होता है, यहाँ तो 50 लाइनें लगी हुई। पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, थोड़े हम दूर चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है दूसरी तरफ को देख रही है। लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट राइट तो वो करके देख लिया उसने मेरी तस्वीर को, उसमें वो इफेक्ट नहीं आया। ये कोई और लेफ्ट राइट के अलावा भी कोई चीज है जो यहाँ पे होती है, है? उसकी प्लेसमेंट चेंज होती है। यार प्लेसमेंट तो लेफ्ट और राइट या टॉप एंड बॉटम में ही होगी ना। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ हो रहा है नवाज। तुम यू शुड फाइंड द राइट वर्ड टू से इट। सर मतलब से जैसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि वो का क्या मतलब है? सर, मतलब आप जैसे यहाँ पर इस पे जियो जेब्रा पे भी आप चेंज करते हैं ना, आप जैसे आप कह रहे थे कि इधर से भी देख सकता हूँ, उधर से भी देख सकता हूँ, वैसे ऐसे हाँ, लगता है एक थोड़ा सा मोड़ दिया है और दूसरी अपनी जगह पे है। मोड़ दिया है, रोटेट कर दिया है। हम्म। रोटेट इज द राइट वर्ड। भट्टी साहब, यस सर, ठीक है सर, रोटेट किस तो कहना ठीक था। इसको हल्का सा
शिफ्ट भी करना है और रोटेट भी करना है। क्योंकि आंखों से जितना दूर होगा तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा नहीं, रोटेट हो। आंखों से जितना करीब होगा उतनी ज्यादा रोटेशन होगी उसकी। आपने अपनी नाक देखी है कभी अपनी आंख से? सर वो तो बहुत सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर जब आप ग्लासेस पहन के देखते हैं ना, तो अगर आप लेफ्ट राइट हुए वो ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। ठीक है यार, लेकिन रोटेशन भी होनी चाहिए और लेफ्ट राइट मूव। अब नवाब तुम्हें पता चल गया क्या वजह है? हाँ जी, अब अगर वो तस्वीर हमारे पास 3D होती ना, जो मेरी तस्वीर थी, वो अगर 3D होती ना, तो फिर हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट भी करते और थोड़ा सा रोटेट भी करते, और वहां से हाँ जी बोलो। लेकिन सर जो मैं आपको गूगल पे पिक्चर्स बता रही हूँ, जो मैंने आपको 2-3 भेजी भी थी, तो सर हाँ। लेकिन उनमें ये इफेक्ट कैसे आ रहा है फिर? उनमें जो ये इफेक्ट आ रहा है वो लिमिटेड इफेक्ट है। हाँ हाँ सर, वो अच्छा, उन्होंने बैकग्राउंड को डिफरेंट रखा होता है। मेरे ख्याल से वो डेप्थ ही क्रिएट कर रहे होते हैं, वो फिर भी स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा होता। ये देखो, ये 2 क्यूब्स है ना, ये देखो, ये रोटेशन है। अच्छा, और ये इनका सेपरेशन है, कितनी दूर जाते हैं। तो दोनों चीजें होना जरूरी हैं। हम जो कर रहे हैं ना, तुम जो कर रही हो, या वो जो YouTube के उसमें था, उसमें सिर्फ तुम ये चीज कर रही हो, ये चीज तुम कर ही नहीं सकती इसके अंदर। ठीक है सर ना? एंगल के बारे में होता है। सर इसके मेरे ख्याल में एंगल के बारे में होता है, पर्सपेक्टिव। एंगल नहीं कहते इसको, रोटेशन कहते हैं। सर मेरे ख्याल में इसके लिए 2 तस्वीरें लेनी पड़ेंगी। नहीं, बहुत सारी तस्वीरें लेने से मतलब अगर आपके पास कैमरा है ना, तो आप एक कैमरा ऐसा जैसे आपकी लेफ्ट आई से जो कुछ नजर आ रहा है, आप कैमरा उस पोजीशन में रख के देखें, फिर कैमरे को थोड़ा सा मूव करें, उतना मूव करें जितना आपकी लेफ्ट आई और राइट आई में फासला है, और थोड़ा सा उसे रोटेट भी करें साथ ही कैमरे को। ओके। फिर जाके आपको वो 2 तस्वीरें मिलेंगी जो एक दूसरे से फासले पर भी होंगी, हाँ, और साथ ही रोटेटेड भी होंगी। मैंने अपने कमरे की एक तस्वीर खींची हुई है, वो मैं आपको नवाल भेज दूंगा। उसमें जब आप ये करेंगे ना, उसमें रोटेशन इस वजह से हुई है कि मैंने कैमरा भी रोटेट कर दिया था। ठीक है सर, मैं आप वाली भी पिक्चर ट्राई करूंगी, मैं खुद भी थोड़ी 2-4 पिक्चर्स खींच के फिर ट्राई करूंगी। हाँ, मतलब तुमने ये करना है कि कैमरे को तुम अपनी आंखों के दरमियान देखो फासला कितना है, ठीक है, उतना ही कैमरा तुमने मूव करना है। ठीक है? और ठीक है, थोड़ा सा उसको आ, उसको रोटेट करना है काउंटर क्लॉकवाइज ऑल्सो। पहले लेफ्ट वाला तस्वीर लेनी है, उसके बाद राइट की तस्वीर लेनी है। राइट में कैमरे को मूव करना है 2 इंच, अगर तुम्हारी आंखों के दरमियान फासला है तो 2 इंच, अगर 3 इंच है, जितना भी है, मुझे नहीं पता कितना होता है फासला, उसके साथ कैमरे को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट भी करना है। ओके, फिर जाके जो तस्वीर बनेगी ना, वो सही बनेगी। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी भी। इसको करके देखें हम। इसको एक सियान बना देते हैं, एक वो बना देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी सर, ठीक इसको है। करके देखें। वेयर इज द क्यूब? दिस वन इज द क्यूब। हाँ, इस क्यूब को हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके और कलर कर देते हैं इसका रेड। ठीक है? और इसको हम कर देते हैं, इस वाले को कर देते हैं सियान। सियान करना है ना? हाँ जी।
ये सियान कर दिया। अब हम इनको करीब लेकर आते हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा रोटेट भी करना है ना, ये ज़्यादा हो गया रोटेट। ये फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा वैसे। और अब ये एक दूसरे के ऊपर, ये सॉरी, यहाँ पर लाके और अब एक दूसरे के करीब भी ले आते हैं इनको। नहीं, ये रेड रेड बाहर आएगा या अंदर आएगा? सर ये रेड पास से होगा मेरे ख्याल से, ये बहुत दूर नहीं। अच्छा, अब ऐनक लगा के देखो, अब कुछ नजर आता है? सर ये प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम अभी आगे पीछे कर लेते हैं ना। इसको आप जरा सामने से दिखाएं। थोड़ा सा ऊपर को ले लें। अब देखो, अब मैं इसका एंगल चेंज करता हूं। सर हल्का सा राइट। और इधर से डिस्टेंस भी तब्दील करता हूं। नहीं, ये तो ज्यादा हो जाता है डिस्टेंस तब्दील। प्रॉब्लम ये जब ये मर्ज होता है ना तो ब्लैक नहीं बन रहा शायद। ब्लैक नहीं बन रहा ना, इसे ब्लैक बनना चाहिए। अब वही सर ब्लैक बन जाता है लेकिन आता नहीं है, निकलता सर नहीं है। जहाँ से ब्लैक बन रहा है ना वो सिर्फ उसके एजेस से बन रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके कलर थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉलिड कर देना कलर को, तो शायद फिर तब हो जाए। सर जरा डार्क कर ले। ओके, दैट सर आई विल। हो जाएगी। इसकी ओपेसिटी खत्म कर दूं? हाँ जी। अच्छा, और दूसरे की ओपेसिटी भी खत्म कर दूं? नहीं, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। अरे मतलब हमें जीरो करनी पड़ेगी। ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। अब दूसरे वाली की भी। अभी आएगा, अभी आना चाहिए नजर। सर मतलब डेप्थ नजर आ रही है लेकिन निकल नहीं रहा स्क्रीन से। अच्छा, अभी करते हैं ना, देखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। सर अगर आप एक को थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर देना, फिर आएगा नजर। थोड़ा सा एक ऊपर या एक नीचे हो जाए, बिल्कुल यार, मामूली सा। आपकी आंखें ऊपर नीचे तो नहीं लगी हुई? नो नो सर, वो बेसिकली जो है ना, वो ऊपर होगा तो वो दोनों उसके नजर आएंगे, अदरवाइज ये दोनों नजर नहीं आ रही उसकी। हर जगह वो दोनों उसकी नजर नहीं आ रही, वो ऊपर आ जाता है तो फिर वो रेड नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखो जरा। ये कि जब आप कलर वैसे अगर हम लोग अभी शेप्स अगर हम लोग ऐनक के बगैर भी देखें ना, तो जहां पर रेड और ब्लू ओवरलैप कर रहे होते हैं तो वो ब्लैक बन रहे होते हैं पिक्चर में भी। अब यहाँ ब्लैक ब्लैक तो बन रहा है। सर ब्लैक और स्क्रीन से नहीं निकलता, डेप्थ नजर आ रही है, 3D भी लग रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। आपने जो भी पिछली एग्जांपल दी थी, आप जरा उस पे लेके जाएंगे जरा। एक मिनट जरा। अब तो बन गया। सर ब्लैक है सिर्फ। तो ये सिर्फ ब्लू, रेड नहीं है इसमें। हाँ सर मतलब इसमें लग रेड नहीं है सर। रही है, डेप्थ भी नजर आ रही है और ब्लैक भी हो गया कलर लेकिन निकल नहीं रहा। अच्छा, सर अब इसमें मैं रेड है। अच्छा, अब मैं इसको एक को ख़त्म कर देता हूँ। और मैं इसकी वो वाली चीज़ ऑन करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि वो कैसे होता है। सर वो ऊपर थोड़ा सा होगा, मैं कंफर्म हूँ इसमें। अब देखते, अभी पता चल जाएगा वो बटन किधर से आएगा। वो ये यहाँ से आता है नज़र। ओके, अब मैं यहाँ से। मुझे तो कलर का मसला लग रहा है। नहीं नहीं, क्योंकि ऊपर जो नीचे
सिर्फ वो लेकिन लाइन जो ओवरलैप करती है, लाइन ओवरलैप ना करती तो नजर आ जाता। नहीं नहीं, लेकिन जो दूसरे जहाँ जहाँ लाइंस ओवरलैप कर रही है ना, वो ऑटोमेटिकली एन के बगैर भी वो ब्लैक बन जाता है। इसमें जहाँ पर लाइंस ओवरलैप कर रही थी वो ब्लैक नहीं बन रहा था। अच्छा अब देखो ना, अब देखो भी पता चल जाता है। वो आ जाएगा सर, वो दूसरी तरफ है, ये वाला नहीं है, वो दूसरी तरफ था सर। इधर से अभी सर वो दूसरा, वो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है राइट से, वो वाली ये आ गया, देखा ना अब देखो थोड़ा। क्या खूबसूरत बना है। हाँ सर, अब निकल रहा है। अच्छा अब एन हटा दो और देखो कि अब देखो ये लाइंस पैरेलल नहीं है ना। नहीं है, कलर का भी डिफरेंस है। जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर लाइंस ओवरलैप करती हैं वहां यार पर वो ब्लैक कलर बनता है। हमने भी डिफरेंस डाला था। लेकिन सर वो देखिए ना, जहाँ पर यहाँ पर लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, मेरे ख्याल से हम लोग जो कलर्स चूज कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। हमें थोड़ा सा उनको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ताकि जब वो ओवरलैप करें ना, तब वो खुद ब खुद ब्लैक नजर आने लग जाए। जैसे यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए ना, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ब्लैक और रेड एक दूसरे को टच करते हैं। सर अब ब्लू निकल सर वो ब्लैक नजर आ रहा है, जीरो एन एन को जीरो से चेंज करेंगे तो आ जाएगा नजर। एन एन को जीरो से चेंज करें, एन वाला स्लाइडर, हैं? एन वाला स्लाइडर चेंज करें तो आ जाएगा नजर, ये वाला। ये तो नजर आ ही रहा है। एन एन वाला स्लाइडर चेंज करेंगे तो आएगा नजर, ये वाला। ये वाला तो नजर आ ही रहा है। मैं ये कर रहा हूं कि मैं उसको भी ऑन कर रहा हूं ना। A1 सर वो एन एन की वजह से नहीं आ रहा। एन एन जीरो, एन एन को एन की वैल्यू चेंज कर दें। नीचे वाला ये था सर, A1 रेड वाला। अच्छा नीचे वाला करना है ये। इससे ऊपर वाला, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला करना है। नीचे वाला कौन सा है? ये वाला A1 A1 हाँ जी, A1 ये वाला। जी। हाँ जी। अभी सर एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो आएगा नजर। अब ठीक है, अब ये बाहर निकल आया, ठीक है ना। सर मेरा पहले से निकल रहा था। अच्छा लेकिन मैं अब ये इसको यहां से इसकी वो खत्म कर देता हूं। वो किधर गया यार? सर वो आप ले गए आए थे एक सेटिंग से। सर वो क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो वो इस पे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऑब्जेक्ट को वो डिसेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और नहीं अभी भी नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट करें, इधर क्लिक कर दें, इधर 3D के नीचे क्लिक कर दें एक। 3D के नीचे ये आ गया। आ गया आ गया आ गया। अच्छा अब ये मैं लीजिए। इस साथ ये भी डाल देता हूँ। सर इफेक्ट चला गया। हाँ इफेक्ट चला गया। वो आपने देखिए, अब मैं कि हमने वो उसका वो ही खत्म कर दिया ना। सर, अब आप ये देखें, ये जो इसका कलर है ना, जो इसका जो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ सॉलिड है। मतलब इसका कलर बहुत सॉलिड है अभी। अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देना, देखिए ये जैसे ये देखो अब कैसे आ गया। कलर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे ना, और फिर आप रेड को भी उतना ही ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अच्छा अब तब ये इफेक्ट देखो, आएगा। ये कितना मजेदार इफेक्ट नजर आ रहा है। वो ये क्या हो गया? ये पूरा पूरा ब्लॉक आ गया है। ये देखो जरा, ये कैसे मजे से। सिलेंडर ब्लॉक ऐसे लग रहे 3-4 या 1-2 सिलेंडर ब्लॉक एक ही अंदर, जो एक के अंदर आए हुए हैं, निकले हुए हैं। खूबसूरत लग रहा है ये। हाँ 3 से निकला हुआ है। तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क करें। कलर डार्क कर दिया। सर अगर हम लेफ्ट राइट है अपना सर लेफ्ट राइट करें तो वो ऑब्जेक्ट भी हिलता रहता है। और अगर हम पीछे जाए, पीछे से भी नजर आता है।
ये वाला बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इतनी कोशिश करता हूँ इसे पकड़ने की, इवन तो मुझे पता है नहीं पकड़ सकते इसे। अब देखो जरा, अब कैसा मजे की चीज है ये। निकल रहा है। सर जो 2D है ना वो खत्म कर दें, सिर्फ वो क्यूब रहने दें। सर निकल है बाहर। तो अब देखो जरा कैसा लग रहा है। हाँ। Now look at it. वाओ। तो इसको मूव करें। एक मिनट, हाँ मूव करता हूँ मैं से, लेकिन मूव करो तो ये सर ऐसा लग रहा है कोई रिचुअल हो रहा है। हाँ तो तुम हाथ जोड़ लो ना इसके सामने। ये देखो, ये कैसी मजेदार चीज बनी है। हाँ यस सर। ये देखो सर, और इससे तो नहीं फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ता है। और अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाए एक साथ तो फिर देखो कैसा जबरदस्त इफेक्ट आता है। हाँ तो नवाज, हाँ जब वो पूरा क्यूब था, मतलब सिर्फ उसकी बॉर्डर्स नहीं थे, उसके वो पूरा क्यूब था, अंदर से भी सॉलिड था। सिर्फ वो इस के साथ करें, पूरा सॉलिड कर दूं? हाँ जी। अच्छा सॉलिड करके देखते हैं। यार ये तो बिल्कुल ही, या ये तो तो सर बहुत सर मुझे पहली दफा नजर आया वो। पहली दफा नजर आया आपको? ये आज पहली दफा मुझे 3D नजर आया। ये नजर आया आपको पहली दफा? काफी बेहतर हो गया, यानी कि पहले तो मुझे कभी 3D फील ही नहीं हुआ, या पहली दफा मुझे फील हुआ ये ब्लैक बाहर आ रहा है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, मिठाई। ये तो तकरीबन मेरा 2-3 हफ्ते के बाद जाके मुझे ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है। बड़ा शानदार चीज है। और हमारे सामने आया हुआ है। हाँ जी भट्टी साहब, कैसा एक्सपीरियंस है? सर बहुत जबरदस्त है ये तो। सर से मैं पकड़ नहीं सकता, इतना गंदा फील होता है। यार ये नादिर किधर चला गया है, नादिर का बच्चा? नादिर ने ज्वाइन ही नहीं की हुई। उसका इंटरनेट मसला कर रहा था। ये देखें, ये आप देखें कितना मजेदार चीज है ये। यस सर, बहुत मतलब सर मैं तो साहब कोशिश करता हूँ उनके होल्स के थ्रू, जो वो है उसके थ्रू उंगली मतलब डालूं और वो इफेक्ट ना खत्म होए। हाँ उंगली डालो इसके अंदर, चली जाती है उंगली। भाई पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसका इफेक्ट भी ना खत्म होए। नहीं अच्छा भट्टी साहब, आपने इसका नोट किया है, इसमें उंगली डाल के देखें। यस सर बिल्कुल, बहुत ही शानदार है। सर ऐसा लग रहा है होलोग्राम है, लेकिन बस उसके अंदर वो इफेक्ट नहीं आ रहा होलोग्राम को, जो ब्लू सा आता है बस, लेकिन निकला बस हमारे सामने। भट्टी साहब ये पहली दफा आपको देख के कैसा लगा? ये तो बहुत शानदार चीज है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जियोजेब्रा की वजह से नजर आया कि उसमें सेटिंग चेंज हुई है, तो एकदम वो नजर आना शुरू हो गया है। ग्लासेस को मैंने उसके ऊपर गॉगल्स को ग्लासेस के ऊपर लगाया हुआ। हाँ जी, वो इसी तरह ही करें। बहुत बड़ा बहुत ज्यादा निकल आता है बस स्क्रीन के, ऐसा लगता है पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है और बस एंड पे आया हुआ है, लेकिन हम नहीं पकड़ सकते। सर क्लास ओवर हो गई है। यार क्लास तो ओवर नहीं हुई, मैं ओवर हो गया हूँ। सर 7 o'clock क्लास नहीं ओवर होती? यार क्लास पता नहीं कब ओवर होती है, लेकिन मैं तो ओवर हो गया हूँ। सर 2 hours बाद तो आप कर देते हैं ओवर, और 2 अब 3 घंटे की क्लास होती है। नवाल वो फिर मैं तुम्हें तस्वीरें भेजता हूँ। हाँ सर ये कब से हो गए? उसको देखकर मुस्तफा तुम भी कैमरे से या मोबाइल से 2 तस्वीरें खींचो, एक ऑब्जेक्ट की जो उसके करीब हो, 1 फुट के फासले पर हो, और उसके पीछे भी कुछ चीजें रखी हुई हो,
और उसके बाद थोड़ा सा कैमरा मूव करके और रोटेट करके फिर दोबारा तस्वीर लो और फिर उनको रेड और सियान वो जो फोटोशॉप में जाके नवाल करती है ना वो काम करो, फिर देखो कि क्या मजेदार चीज निकलती है। सर आपने जियोजेब्रा पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये ऐसे बना है? जियोजेब्रा में आप ये देखें जरा, ये देखें, ये 3D ग्राफिक्स, ये है ना, ये है ना, नजर आ रहा है आपको 3D? हाँ जी। ये 3D ग्राफिक्स में आपने यहाँ पे जाके ये इन ग्लासेस को सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। और अब इसको भी मैं, इसमें से एक को मैं ग्रे कर देता हूँ और एक को और भी मजेदार हो जाता है ये। सर इसे फुल डार्क करे, फुल डार्क, मतलब इसकी जो लाइन है फुल डार्क हो जाए दोनों की। हाँ जी। लो जी, एक की भी हो गई, दूसरे की भी हो गई। जी सर अब ज्यादा क्लियर इफेक्ट नजर आ रहा है। तो एक और भी आ गया। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? जियोजेब्रा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये कैसा हो रहा है यार? ये दो सिलेक्ट नहीं हो रहे अभी भी। सर ये दो क्यों आए हुए हैं? ये अच्छा, ये दो सिलेक्ट हो जाते हैं, इन दो को हम खत्म कर देते हैं। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? सर हल्का हल्का निकल रहा है। नहीं नहीं, हल्का हल्का नहीं निकल रहा, बहुत ज्यादा निकल रहा है। आई थिंक निकल आगे रहा है वो, बस मुझे बहुत ज्यादा फील, निकल वरना अगर मैं उंगली डालने की कोशिश करूं अंदर जल जाती है। अच्छा, इसमें से मुझे खास एंगल से नजर आता है सही बिल्कुल, बाद में फिर ये उस तरह नजर नहीं आता। एक जो क्यूब या मर्ज होते हैं ना वो ज्यादा क्लियर नजर आते हैं, जब दो दो होते हैं अलग अलग से वो हल्का सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कैसी लंबी सी ट्रेल आ गई है। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आ गई है ट्रेल तो क्या हो गया, तुम्हारे भी तो दुम है। सर तुम्हारी दुम, मेरी कब से धूम आ गई है? तुम्हारी दुम ही नहीं है। सर मेरी दुम किसी इंसानों की दुम तो नहीं होती। अच्छा, मेरा ख्याल था कि दुम होती है। ये देखो जी, ये कैसा मजेदार चीज नजर आई है। हाँ जी सर। अच्छा, आप ऐसा करें कि अपना मुंह जो है वो लेफ्ट राइट मूव करें, ये इमेज भी मूव करेगा साथ साथ। सर वही मैं आपको कह रहा था पहले, इमेज भी मूव करती है। हाँ, ये बाकी लोग भी, भट्टी साहब आप जरा करें सर लेफ्ट आगे राइट। पीछे में तो वो पिक्चर बंद हो जाती है कभी कभी, या फिर ज्यादा एक्सपैंड होती है। आगे पीछे नहीं करें, लेफ्ट राइट पे मूव करें अपना मुंह, तो ये पिक्चर भी मूव करती है साथ साथ। स्क्रीन मूव नहीं करती है, ये कर्सर मूव नहीं करेगा, लेकिन ये चीज मूव करेगी। यस सर, उसका वो मिडल वाला पार्ट ऐसा लगता है कि हमारे बस आंखों के ऊपर डायरेक्टेड है। हाँ जी। हाँ जी। तो जब हम मुझे ना खास एंगल से नजर आता है, उसके बाद यानी अभी अब ये बहुत इसकी अभी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, और जो सर पहले था ना अब इफेक्ट बेहतर हो गया एकदम, अब बेहतर हो गया। अच्छा, आप जरा भट्टी साहब लेफ्ट राइट अपना सर मूव करके देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर नीचे ना करें। देखें ये भी मूव कर जाता है उसी तरह। कैसे कर रहे हैं सर? इसका बैकग्राउंड मूव नहीं करता, लेकिन ये मूव कर जाता है। ये सर क्यों मूव करता है? हाँ जी, तो ये 3D इफेक्ट, ये प्रॉपर 3D इफेक्ट होता है। जब आप कोई चीज मूव करें तो बैकग्राउंड तो उसी तरह ही खड़ी हुई है, लेकिन वो जो चीज आप देख रहे हैं वो मूव कर जाए। अच्छा, अगर मैं दो क्यूब्स दिखाऊं आपको, हाँ ये देखें, इसमें आप मूव करें तो अब आप देखें कि एक ज्यादा मूव करेगा, एक कम मूव करेगा। जो आपके करीब है वो ज्यादा मूव करेगा। हाँ जी, आगे वाला ज्यादा मूव कर रहा है। तो ये बिल्कुल ये प्रॉपर 3D इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। सर लेकिन अगर आप आगे वाला जरा खत्म करें, सिर्फ पीछे वाला रहने दें। हाँ जी। अच्छा, नहीं चेंज होता, मुझे लगा ठीक है जी। पट्टी साहब कैसा है? सर बहुत सर, इसमें अगर ये जो आप रेड बंद कर देंगे तो फिर क्या रहेगा?
रेड को अगर हम क्या मतलब? सर रेड वाले को वैनिश करते हैं तो फिर ये अच्छा आई एम सरप्राइज्ड कि आंखों में इतनी दर्द नहीं होना शुरू होगी इतनी अगर देर red वाला- तक। अब ये सर ये ग्रीन वाला अब बहुत अच्छा होगा। अभी ग्रीन वाला 2 हैं सामने नजर आ रहे हैं। हाँ जी, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। सर हाँ जी। लग रहा है ट्रांसपेरेंट डब्बा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। यार अंदर कुछ भी नहीं होता किसी भी डब्बे के। तुमने सुना था कि एक लड़की थी, वो अपने अब्बा को बहुत बड़ी बड़ी चीज समझती थी, तो बाद में ड्रामा खत्म हुआ जब वो तो सीढ़ियों पे बैठ के वो गाना गा रही थी, अब्बा जी भाई अब्बा जी एक पाकीज़ा डब्बा जी, अब्बा जी एक पाकीज़ा डब्बा जी, खोल के देखा अंदर से। अब आगे मैं कुछ कहूंगा तो फिर आपको एतराज हो जाएगा। सर मेरे पास एक चीज है, आप एक्टिंग करें, मतलब असली में हो नहीं सकता लेकिन वैसी एक्टिंग करें कि आप उसे पकड़े फिर अपना मुंह लेफ्ट राइट करे, ऐसा लगता है आप अपनी उंगली से हिला रहे हैं उसे। हाँ वाकई। नहीं सर मतलब कर्सर से नहीं, वो जो होलोग्राम वो जो लगता है उसे हाँ वाकई। ऐसे करे तो आपकी फिंगर जिस तरह मूव करती है आप उधर सर भी मूव करे, ऑब्जेक्ट भी मूव करता है, ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। भट्टी साहब ये कितना मजेदार एक्सपीरियंस है, ये बच्चों को पहली दफा दिखाया जाए तो वो इसको देखते ही रह जाएं। हाँ जी, ये सर बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। मुझे आज पहली दफा इतना क्रिएट पहली दफा नजर आया, वरना तो अब तो 3D का पता नहीं लगा था। मेरी आंखें थक गई है। और अजीब बात है कि बाबर साहब भी आज नहीं है, समीना भी नहीं है और यासरा भी नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है। और नादिर भी नहीं है। नादिर तो खैर वो उसका इंटरनेट का मसला पड़ रहा है ना। फातिमा भी चलती है छोड़ के। सर मेरी आंखें थक गई है अगर और हम मुझे बड़ी देखा जा रहा। तुम अपनी पीछे वाली आंखों से देखो ना, जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। सर क्लास का बोर होनी है, मैं थक गया हूँ। सर यार इतना एंजॉय किया है, एंजॉय करने में कोई थकता है? सर एंजॉय इतना ज्यादा किए सर, थक जाता है बंदा, ऐसे बस लैपटॉप की स्क्रीन को ऐसे बस देखता रहे एंजॉय करता रहे। अच्छा नवाल, तुम क्या कह रही हो? सर मैं कह रही हूँ तो हम छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देखें तो कैसा इफेक्ट होगा? हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही इफेक्ट होगा। तुम सर मैं इसको कह रहा हूँ उसको बड़ा कर दे, उसकी वो मतलब वो क्या करते हैं वो, मतलब बड़ा हो सकता है ये क्यूब, बड़ा हो सकता है। सर बड़ा कर दे, क्या पता ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, क्या तो ज्यादा अच्छा लगे। हो माय गॉड, ये क्या हो गया सर? ऐसा लग रहा है एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स आ गया मेरे पास। मैं अगर बड़ी अगर हम टेलीविजन पे प्रोजेक्ट करते हैं ना किसी HD TV पर, तो तस्वीर जो है वो आपके दरमियान में बनेगी है। यस मैं सर भी वो आपकी, लेकिन ये लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है ना, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वरना ही बड़ा अच्छा लगता है बड़ा से। अच्छा वो मैं उसकी दरशवाना तुमने देखा है ये दरशवाना? जी जी मैं देख रही हूँ। तुम्हें 3D इफेक्ट नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। तो तुमने कोई हैरानी का इजहार नहीं किया? मैं अपने आप में कर रही हूँ। हाँ, अपने आप में ही कर रही हूँ। you didn't appreciate it. It is worthy of appreciation. हैं? मैं कह रही हूँ it is worthy of appreciation. बाकी सभी कर रहे हैं। ये देखें, ये अब कितना बाहर निकल आया है। सर पास से ऐसा लग रहा है बंद हो रहा है बॉक्स, मतलब हमसे दूर जा रहा है। अच्छा दर्शवाना, तुम्हारी मदर भी तो एजुकेशन में प्रोफेसर है ना? हाँ तो उनको जरा ये एक्सपीरियंस करवा के तो दिखाओ। मैंने उनको करवा के दिखा दिया, उन्होंने देखा है 2 दफा। वो क्या कहती हैं? काफी मजे गए। नहीं, क्या कहती क्या हैं वो? इनके कमेंट्स मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी, ठीक है? लिख के भेज दें मुझे। सही है। ठीक है सर आज पहली दफा बाहर भी आ गया सर ये।
सर इस बाहर हफ्ते में हमारी अगली क्लास या हमारी आखिरी क्लास इस हफ्ते के लिए सैटरडे को है। पहली दफा होगा ये। Saturday को 5 बजे। सैटरडे 5 बजे। हाँ जी। और संडे को तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी सर, मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हम लीव Okay. कर सकते हैं? अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। ये रिकॉर्ड हो गया है ना सारा? यस सर। सर Okay. रिकॉर्ड हुआ सर।